जी दर्शकों अंतराल तो बाद एक बार मुड़ तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਦਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਓ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਰੇਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਓ ਐਟ ਜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ 40000 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੇਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਟਲ ਕੱਢੋ ਐਲਬਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਚਲੋ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਪੁੱਤ ਫੱਟਦੇ ਨੇ ਬਾਹਮ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਂਡਸ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਤਾ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੈ। 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ 300 ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੋਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ? ਰਗੜ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਲਓ ਕਰੋ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਚ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਟ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ। ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਪਜਾਮਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ AICC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 AICC ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਕੇਨ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਹਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਸੀਨੀ ਲੱਖਪਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੈੜ ਦੇਣੇ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਵਧੀਆ ਠਾ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਸਪੌਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪੰਦਨ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਪਰੂ ਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲੇਟਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, that is not rehabilitation. ਵਿਪਰੂ ਨੋਰਫਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੂਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਬਲ ਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਟੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ही पीनी चाहिए है? जी रूही, सबसे पहले तो जो हर्बल टी है, अब मार्केट में हर तरह के जो है ये ग्रीन टी हर्बल टी के नाम से सैशेज या पाउचेज जो है अवेलेबल है। आप ऐसे भी जो डब्बे में बंद आती है हर्बल टी वो भी ले सकते हैं। और इसके ज़्यादातर जहाँ पर भी आप देखिए, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो जो कंज्यूमर्स हो जो खुद कंज्यूम करते हैं हर्बल टी, उन्होंने वो काफ़ी फैंस हो गए हैं। अब बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे सूट नहीं किया। ज़्यादातर ये क्या करती है, जब आप उनको आप गर्म पानी में डिप करते हो और उसके थोड़ी देर के बाद कंज्यूम करते हो, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो आपके नर्व्स को भी काफ़ी हद तक रिलैक्स करती हैं। कई मार्केट में ऐसे अवेलेबल है हर्बल टी जो जब आप पीते हो सिप के साथ ही आपको वो ऐसे रिलैक्स करती है, सूद आउट करती हैं कि आपको इसका इमीडिएट इंस्टेंट इफेक्ट जिसको कहते हैं वो भी फील होता है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपना वेट पुट ऑन हो चुका है, अगर आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो हर्बल टी कैन बी हेल्पफुल इन अ बिग वे। तो हर्बल टी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर पर्टिकुलर जो एंजाइममेंट्स हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस में अगर कोई पेशेंट है तो उसको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या वो ये टी ले सकते हैं या नहीं। पर मेजरली ऐसा रूही देखा गया है कि हर्बल टी के काफ़ी फ़ायदे हैं। वो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हेल्प करते हैं। वेट के लिए भी, वेट रिड्यूस भी करना चाहते हैं तो भी आपको बड़े तौर पे, काफ़ी लार्जर तौर पे हेल्प करते हैं। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾयद जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई वर्कआउट कर रहे हैं वो फ़ायदा नहीं दे रहा? रूही, एक तो होती है कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो 2 दिन का वर्कआउट किया है या 2 दिन की डाइट की है तो उनका वेट रिड्यूस होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बॉडी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, किसी बॉडी का जो वो है वो ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि तुरंत ही वेट रिड्यूस होने लगता है या फिर तुरंत ही वेट गेन होने लगता है। कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनका वेट काफ़ी स्टबर्न जो होती है, काफ़ी फैट जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। ऐसे लोगों को वेट रिड्यूस करने में काफ़ी वक्त होना चाहिए और काफ़ी रिलीजियसली, यानी कि अगर आपने एक दिन 10 बजे चाय पी है तो आपको दूसरे दिन भी 10 बजे ही चाय पीनी है। और इसकी क्वांटिटी कैसी है ये भी आप अपने डाइटिशियन से पूछ लीजिए। अगर आप पर्टिकुलरली वेट रिड्यूस करने की बात करें तो आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना है। 80 से 70 to 80% ये कहा जाता है कि हर्बल टी तो आप पी रहे हैं, ये आप एडिटिव ले रहे हैं, यानी आपको ये फ़ायदा तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वेट जो आप चाहते हैं जिस लेवल पे रिड्यूस हो वो उस टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना डाइट जो है वो खास रखना है। आप कितनी मात्रा में ग्रेन ले रहे हैं, कितनी मात्रा में फ्रूट ले रहे हैं। जो अब गर्मियाँ आ गई हैं, सीज़न का भी खास तौर पे ध्यान रखें कि किस सीज़न में आप किस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन्स या फिर मल्टीग्रेन्स की जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस मात्रा में और किस टाइम में कंज्यूम करें, इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जी ਤੇ ਨੇਹਾ ਮੈਮ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ weight reduce 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ weight ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? रूही, जब आप बात फ्रूट्स की करते हो तो फ्रूट्स को लेकर ना मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है। कोई मिक्स फ्रूट चाट उसको बहुत हेल्दी मानते हैं, जबकि आप हमारे नेचर को समझने की कोशिश करो तो किस सीज़न में कौन सा फ्रूट आ रहा है।
समर में मैंगो आता है, तो मैंगो को उस समर के टाइम में रात को क्यों नहीं खाना है, आपको दिन के टाइम में क्यों खाना है? पानी में डिप करके पहले आपको उसकी गर्मी निकाल लेनी है, जो लू या फिर जो गर्म हवाएं लगी हैं उसका क्या उस पर जो प्रोडक्ट है मैंगो उस पर क्या असर पड़ा है। तो कई सारी बारीकियां हैं। अगर आप रात के वक्त मैंगो खा रहे डेफिनेटली आपको हार्म करेगा। साथ ही साथ मिक्स फ्रूट चाट जिसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हेल्दी डाइट वी आर हैविंग, पर तो एक गल होर विच फ्रूट क्रीम भी पा लेंदे ने। बिल्कुल जी। उसको और फ्लेवर ऐड करके वो सोचते हैं कि हम अपने टेस्ट बर्ड्स को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम वो वेट रिड्यूस वाला टारगेट भी अपने दिमाग में रख रहे हैं कि हमें वेट भी रिड्यूस करनी है और वी आर हैविंग अ गुड डाइट, या फिर अगर रिड्यूस नहीं करना तो हमें मेंटेन करना है। या फिर जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कोई बीपी का, ब्लड प्रेशर का, या फिर डायबिटिक है, या फिर दूसरे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ऐसे पेशेंट ये सोचते हैं कि फ्लेवर्स भी ऐड करके, और लेकिन हम तो डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम तो मिक्स फ्रूट चाट खा रहे हैं। तो मिक्स फ्रूट चाट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। एक खास बात का ध्यान रखिए कि अमरूद कभी भी किसी भी दूसरे फ्रूट के साथ मिक्स करके नहीं खाइए। अमरूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रूट है, और अगर आप दिन के वक्त खाते हो तो आपको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। मैम कुछ जगह ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਫਰੂਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो प्लीज़ उन्होंने सही टाइम दसो कि किस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रूट लेना चाहिए, खाना खाने के किन टाइम बाद या कितने टाइम पहला? एक तो है कि फ्रूट्स हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सैलेड का भी कॉन्सेप्ट यही है, पर ज़्यादातर ये हो गया कि आप खाना खा रहे हो साथ में सैलेड खा रहे हो, तो दैट इज़ फाइन कि आप खाने के साथ खा रहे हो, लेकिन खाने के बाद खाए तो उसका इफेक्ट जो है आपकी बॉडी में वो अंदर जाके किस तरह से काम करेगा वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स है, जो उनको एनर्जी चाहिए थी, जो एंजाइम्स चाहिए थी, जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, वो आपने पहले ही, जब कहते हैं ना भूख लगी है तो पहले वो जो भी आर्गन जिसको मिलता है वो खा के अपना काम चला लेते, फिर बाद में जो आता है तो वो उतना असरदार नहीं रहता। इसी तरह से फ्रूट्स भी काम करता है। अगर आप फ्रूट्स पहले खाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है आपके बॉडी आर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। सिमिलरली सैलेड जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। जी, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जिमें घरेलू नुस्खे ने कि जिमें जीरे का पानी हो गया, दालचीनी का पानी हो गया, बहुत सारी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ weight reduce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਚ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ये? वो तो रूही डिपेंड करता है पेट कितना बाहर है और कब से बाहर है। तो अगर आपने ये रियलाइज टाइम पे कर लिया है कि आपका जो फैट है या फिर जो टमी है वो ज़्यादा बाहर आ चुकी है, और आपने टाइम रहते ही ये सब जो है एफर्ट्स है वो शुरू कर दिए, तो इसके रिजल्ट जल्दी आते हैं। जो आप बोल रहे हैं ज़ीरा पानी या फिर जो है दालचीनी का पानी, ये सब भी करते हैं। ये एक अच्छे हेल्थ हैबिट्स होते हैं जो अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो ज़रूर देते हैं किसी ना किसी तरह से, स्ट्रेस से या फिर जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में वो आपको हेल्प करते हैं। और जीरा पानी नो डाउट बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप लोगे तो आपकी फिर स्किन में भी डिफरेंस दिखने लगेगा, आपके बालों में, और सेम एज जो दालचीनी का पानी आप कह रहे हो ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए कई लोग दालचीनी डाल के चाय भी पी लेते हैं। जी, तो हाँ साढ़े दर्शकों दसो कि सानू वेट घट करने वास्ते की खाना चाहिए ते की नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स की होने चाहिए ने? रूही, डोंट्स तो बिल्कुल साफ है कि आप जितना तली हुई चीज़ें खाइएगा, आप जितना स्पाइसी खाइएगा, जितना जो हैवी माने जाते हैं खाना जिसको पचने में बहुत टाइम लगता है, इस तरह के जितने भी, जैसे आप बहुत शौकीन है बटर के, बहुत शौकीन है, तो ये चीज़ें अब अगर आप पहले ही फैट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो आप खाते हैं, बटर खाते हैं या फिर कुछ भी तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है। एक टाइम ऐसा, एक उम्र ऐसी आ जाती है जब वो उतनी तेज़ी से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करना, उसका जो है रफ्तार है वो स्लो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप अगर श्योर कीजिए, चलिए आप कभी कभी खा लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये श्योर कीजिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है इन सब चीज़ों के, क्या आप वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इजीली वो रिड्यूस कर सकते हैं तो ये एक काफ़ी एक मेजर चेंज लाएगा आपके
बॉडी रिड्यूस की जर्नी में। और डूज आप वही है, आप सुबह उठ के आपका जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपने अगर सुबह गर्म पानी से शुरुआत कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप जो दूध वाली चाय है उसे रिड्यूस कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप जो डाइट ले रहे हैं, अगर आपने 2 फुल्के लेने की आपको आदत है तो क्या आपका 1 फुल्के में चल सकता है। वाइट राइस, अब ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि वाइट राइस जो है कहीं ना कहीं आपके जो वेट की प्रॉब्लम है उसमें वो मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हो सके तो स्टार्च होता है जी, तो वो वाइट राइस आप स्किप कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत बड़ी चैलेंजिंग नहीं होती, अगर आप चाहें तो इसको ईजिली कर सकते हैं। हमारी बॉडी को ज़रूरत क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हमें वही एनर्जी हेल्दी फ्रूट से, हेल्दी वेजीज से, अगर आप वेजीज को बॉईल करके और फिर थोड़ा सा अपना फ्लेवर करने की कोशिश करें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उससे कभी भी सॉल्ट जो है रॉ नहीं खाइए। अगर आप प्लेन वाइट सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो कभी भी प्लेन वाइट सॉल्ट रॉ मत खाइए, ऊपर से जो है एडिटिव्स की तरफ से मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है। जी, मतलब जे वधिया ਹੁੰਦਾ रॉक सॉल्ट, या ਅਸੀਂ कह लिए कि काला नमक बहुत वधिया जी, ਹੁੰਦਾ। और अगर आप वाइट सॉल्ट यूज करते हैं तो उसको पहले कुक कर लीजिए, उसके बाद कंज्यूम कीजिए। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? अगर आपको हाई बीपी है, डॉक्टर ने कहा है, तो ये बिल्कुल ही जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको नमक जो है बहुत ही उसका जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है, आपका बीपी शूट हो जाता है। खाने पीने में भी बीपी के जो पेशेंट्स हैं रूही, उनको अपनी खाने पीने की हैबिट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जब तक एक डिसिप्लिन, हमारी बॉडी क्या ढूंढती है, एक डिसिप्लिन ढूंढती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने खाने पीने के लेकर, तो ये लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स है हमारी, बीपी, डायबिटीज, ये रहती हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आपने टाइम पे खाना नहीं खाया है और अपनी दवा नहीं ली है, तो ये आपको 1-2 दिन और तीसरे दिन तो आपको हिट करना ही करना है। तो आप फ्राइड मत खाइए, कोशिश कीजिए कि जो आपने एक अच्छा डाइट, अपना दिन का मील तैयार किया है, जो आपका डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। हाँ, वंस इन अ वीक आप चीट डे भी फॉलो कर सकते हैं, कि आप रख लीजिए अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कि दिस वुड बी माय चीट डे, वेदर इट वुड बी फ्राइडे और सैटरडे और संडे। मैक्सिमम लोग संडे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने सोशल गैदरिंग्स का भी इस तरह से उसका लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बॉडी, सब कोई चाहते हैं रूही कि वी शुड लुक गुड, वी शुड बी प्रेजेंटेबल, वी शुड, जब हम बाहर निकले तो लोग कहें कि हाँ यू आर क्वाइट स्मार्ट, या यू हैव टर्न समथिंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ? हर्बल टी ऐसी ये एक ऐसी हैबिट है जो रूही हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमें किसी तरह से हार्म करे, अनलेस कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि यू शुड नॉट कंज्यूम ग्रीन टी या हर्बल टी। तो ये एक ऐसी हैबिट नहीं है जो आप ये देखो कि हमने कितना रिड्यूस किया, हमने क्या 15 दिन में रिड्यूस किया है कि नहीं। आपने अपने खाने के पहले हर्बल टी ली है या बाद में ली है, ये भी मैटर करती है। आपने खाना खा लिया, उसके आधे घंटे के बाद, 40 मिनट्स के बाद अगर आप एक अच्छी ग्रीन टी, हर्बल टी ले रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ, फिर भी आपको कम से कम मिनिमम 25 to 30 डेज तो देने ही पड़ेंगे। 10 से 15 दिन में अगर ज़िद्दी फैट है तो वो रिड्यूस नहीं होने वाला है, आपको वक्त देना होगा। और अगर नहीं भी होना है तो भी इट सूट्स योर जो होता है मेंटल जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे भीतर, उनको रिलैक्स करती है और उनको वो चीज़ें देती हैं, मसल्स को हमारे काफ़ी रिलैक्स करती हैं। तो इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी शुड गो विद दैट। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ weight ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। बॉडी शेम जैसी जो एक कॉन्सेप्ट बीच में चला था, अब काफ़ी इस पे डिस्कशन होने लगा, विच इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि स्लिम होना ही या फिर टमी अंदर होना ही एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी मानी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको गॉड ने जैसे बनाया है
आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे वेट रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट से क्या होता है रूही कि वी इनवाइट अननेसेसरी डिजीजेस, वो अट्रैक्ट कर जाती है, जैसे बीपी एंड डायबिटिक, ये हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हमने सोचा है कि हमें वेट रिड्यूस करना है तो खासकर ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा एम्बिशियसली एक्ट मत कीजिए। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, क्या उस डाइट से, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 2 रोटी आपकी डाइट है और आप 1 पे आ रहे हो, तो क्या आपका वर्कलोड पूरे दिन का इतना है कि आपकी 1 रोटी से या फिर दिन का 3-4 घंटा उस 1 रोटी से निकल जाएगा? अगर नहीं उस अमाउंट से आपको एनर्जी मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट रिड्यूस योर जो होता है फुल्का या फिर जो डाइट अमाउंट है उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। फिर आप थोड़ा लंबा टाइम ले लीजिए और ये कर लीजिए कि हाँ, दिन में मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फटीग्स और जो दूसरे बॉडी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वेट रिड्यूस करने का, फिर आप दूसरे ट्रबल्स इनवाइट कर लीजिए। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ क्या ਉਹ सच में वेट रिड्यूस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल बहुत से हम पुरानी चीज़ों पे चले गए हैं कि वेट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे चीनी को रिप्लेस कर लिया है गुड़ ने, वैसे वाइट सॉल्ट को रिप्लेस कर लिया है रॉक सॉल्ट ने, पिंक सॉल्ट ने। इसी तरह से घर की दही कंज्यूम आप ज़्यादा, समर अब गर्मियों का टाइम है तो आप नींबू भी काफ़ी अच्छे डाइजेस्टिव माना जाता है कि अगर आप नींबू अपने खाने में ही ऐड कर लीजिए या फिर अपने ड्रिंक में ऐड कर लीजिए तो ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं बॉडी में जो तेज़ी से जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सत्तू जो होता है उसको भी कहते हैं कि एक तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें जो आपको जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो तो आपको देते ही, साथ ही एक हेल्दी भी है ये। आप वो लिक्विड घर पे ब्रेकफास्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि आपको लाइट लंच रखना है तो वो उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मियों और सर्दियों ये दोनों के हिसाब से डाइट हमें अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और दिस इज़ नॉट अ वेरी चैलेंजिंग टारगेट, तो वी कैन अचीव इट। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਨਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੱਲ ਤਾਂ नहीं ਜਾਵਾਂਗੇ, पर पीनट्स ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ हेल्पफुल ਹੁੰਦੇ ਨੇ वैसे? पीनट्स में भी काफ़ी वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी रूही होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो प्रोटीन है, जो हाई प्रोटीन है, जब हम कहते हैं अगर हम डाइट पे जाते हैं, विल स्विच टू डाइट, तो हमें प्रोटीन काफ़ी हेल्प करता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पीनट्स भी हैं, चीज़ भी है नो डाउट, और हाई प्रोटीन पनीर भी है और सोयाबीन्स भी हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो नॉनवेज भी है, लेकिन नॉनवेज में फिर आप ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत अच्छे से तड़का मार रहे हैं, बहुत स्पाइसेस डाल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कम करती हैं। तो वी शुड हैव प्रोटीन बट इन अ बेटर मैनर। एक्सेस प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और फिर डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई दूसरी ट्रबल्स या फिर जो डिजीज़ है वो आपके पास आ सकती है। तो बी केयरफुल वाइल अडॉप्टिंग हैवी प्रोटीन और फिर लो प्रोटीन डाइट। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? डिनर ਸਾਨੂੰ किस ਵੇਲੇ तक कर लेना चाहिए? मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि बाय 6 और बाय 7 PM यू शुड बिफोर गोइंग टू बेड आपको एटलीस्ट 4 घंटों का या फिर मिनिमम 3 घंटे का ब्रेक तो रखना चाहिए। अगर आपने डिनर ले लिया है 7 o'clock तो फिर बाय 10 यू कैन गो टू योर बेड। पर ऐसा अगर आप करते हैं कि आपने तुरंत डिनर किया है एंड विद इन 10 मिनट्स यू आर गोइंग टू बेड, तो वो आपको काम नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव सही से नहीं होगा। प्रोसीजर तो होगा लेकिन फिर वही आपको टमी की तरफ से प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कहीं और भी स्टोर होने लगेगा, सही से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद थोड़ा सा वॉक ज़रूर करिए। इंस्टेंट अगर आप बेड पे जाते हो तो ये सब चीज़ें अब क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है रूही कि हम फिज़िकली तो नहीं उतना इन्वॉल्व रहते हैं पर हम मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये चैलेंजिंग जो सिचुएशंस आ गए हमारे डाइट से ले, अब ज़्यादातर लोग हम क्यों देखते हैं कि वो अपने डाइट का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वॉट दे आर कंज्यूमिंग या फिर वो क्या चीज़ खा रहे हैं या फिर वो उनको क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमारी लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है। तो रात में तभी खाना आप खाइए जब आप
3 घंटे मिनिमम ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप सोने जाइए। और ते वर्कआउट करने का टाइम कितना को होना चाहिए? स्टार्ट आप 20 मिनट से कर सकते हैं, 20 मिनट का टारगेट रख लीजिए। अगर आपकी बॉडी जो है 10 मिनट में ऐसा लगता है, जो कई बार हम देखते हैं कि जो हैवी वेट पर्सन्स होते हैं उनको इनिशियली 10 मिनट्स में ही वो हाफने लगते हैं, और जो टारगेट है जितने उनको करने हैं वो एक्शंस वो नहीं कर पाते। तो आप स्टार्टिंग 15 मिनट्स मिनिमम रखिए और वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप उसको ग्रेजुअली जो है 15 to 20 कर लीजिए, 20 to 25 मंथ वाइज भी करें। तो गोल्स ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਤਿ Thank ਸ਼੍ਰੀ you, ਅਕਾਲ Rohit. ਜੀ।